بہت بڑا سوال ابھی باقی ہے، کیا یہ پہلا واقعہ ہے یا صرف یہ ایک کڑی ہے اس ظلم و ستم کی جو احمدیوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے؟ ڈاکٹر شیخ محمود صاحب کو ایک لمبے عرصے سے مذہبی منافرت کا سامنا تھا۔ جی دوستو، یہ سرگودا کے اندر ایک قادیانی ڈاکٹر کا قتل ہو گیا اور اس کے اوپر آج کل قادیانی بہت شور شرابہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت جناب پوسٹیں نظر آ رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر بڑی بڑی براڈیں لگ رہی ہیں۔ لو جی، مسلمان یہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں، پاکستانی ہمارے اوپر جناب خون خرابہ کر رہے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں، قادیانیوں کو مار رہے ہیں اور جناب بہت زیادہ شور ہو رہا ہے۔ تو پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، یہ جو قادیانی کا قتل ہوا ہے اس کے اوپر ہم جناب افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کام بالکل غلط ہوا ہے۔ قتل کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ قتل جرم کی وجہ سے جو قتل ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، وہ گورنمنٹ اس کو قتل کرے نہ کرے وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ کسی کو بھی کسی سے کوئی اعتراض ہو، کسی عقائد اور نظریات کے اندر اختلاف ہو تو اس کا لیگل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے قانون کے مطابق قانونی کارروائی کیجیے، قانونی چارہ جوئی کیجیے۔ قانون اس کو سزا دے نہ دے، قانون چاہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھانے کے اندر بند کر کے چھوڑ دے، جیل کے اندر ڈال کے کوئی کچھ سالوں کی سزا دے کے بعد میں چھوڑ دے۔ وہ عدالت چاہے، وہ قانون چاہے تو اس کو قتل کر دے، پھانسی دے دے۔ یہ قانون کا کام ہے، یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ قادیانی ڈاکٹر کا جو قتل ہوا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کو پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ قادیانی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پاکستان میں ظلم اور ستم ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ جاتے ہیں امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر اور دیگر یورپین جو کنٹریز ہیں وہاں پر جا کر کے وہاں پہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ اخبار کے اندر بھی یہ خبر چھپی ہے، یہ ہمارا چینل ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہ اپلوڈ کی ہے ویڈیو۔ ثبوت یہ ہے کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر سیاسی پناہ دے دو۔ اس کو اسائلم کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو اسائلم یعنی سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ اس قسم کے وارداتیں جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں۔ اب جب تک کوئی ایسا معاملہ ہوگا نہیں تو پیش کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے، مطلب یہ کہ سیاسی پناہ کب تک کیسے ملے گی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں ابھی تک؟ نہ تمہیں وہ ان کو باور کروانا پڑے گا، ان کو کوئی ثبوت دینا پڑے گا کہ دیکھو جی یہ ثبوت ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، میرے اہل و عیال کو خطرہ ہے، مجھے بھی یہاں پر اپنے ملک میں رہنے دو اور میرے خاندان کو بھی یہاں پر رہنے دو۔ وجہ اس کی یہ ہے تو وہ بھائی کچھ دکھانا پڑے گا۔ جب تک دکھائیں گے نہیں تو تب تک آپ کو وہ ملک، جس ملک میں بھی آپ جائیں گے، وہ سیاسی پناہ نہیں دیں گے، اسائلم نہیں دیں گے۔ تو قادیانیت کی جو یہ اسائلم لینے کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیز ہے کہ باور کروایا جائے کہ ہمارے اوپر ظلم اور ستم ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر ہر دوسرے دن اپنا کوئی بندہ جناب پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اس کی پھر ویڈیو بنائیں گے، اس کی پوسٹنگ بنائیں گے، اتنا شور مچائیں گے، اتنا شور مچائیں گے، پاکستان کو گالیاں دیں گے، پاکستانی مسلمانوں کو گالیاں دیں گے، پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی افواج کو، سب کے
लिए जो है ना हल्ला मचाएंगे। ये कादियानियों का तरीका, ये पहले आप तरीका समझ जाएंगे, बात सारी आपको समझ आ जाएगी असल हकायक हैं क्या। अच्छा, ये काम शुरू हुआ था 1974 की असम्बली ने जो फैसला किया था ना कि ये नॉन मुस्लिम अकलियत है, इस्लाम से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। इन्होंने सबसे पहला अपना काम जो करवाया था वो गढ़ी शाहू लाहौर के अंदर कुछ गनमैन आते हैं, क्लाशन कोफे उन्होंने पकड़ी होती हैं, वो ऐसे जनाब ये अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ होते हैं तो वो कत्ल कर देते, कुछ 86-90 के करीब कोई कत्ल हो जाते हैं कादियानी। इन्होंने ये किया, अब वो काम जो है ना सारा करवाया था इन्होंने खुद, सिर्फ और सिर्फ सियासी पनाह लेने के लिए। उसका सबूत आपको स्क्रीन के ऊपर एक लेटर नज़र आ रहा होगा जो सलीमुद्दीन नाजरे अमूरे अम्मा जो इनका पूरे पाकिस्तान का मामलात चलाता है, उसने ये काम करवाया था। उसको इन लोगों ने हालिया निकाल दिया, इखराज लगा दिया, जमात से निकाला। वजह और बेस इन लोगों ने ये बनाई कि तुमने वो 86 कादियानियों को कत्ल करवाया था। हाँ जी, 86 कादियानियों के कत्ल के अंदर तुम मुलव्वस थे। तो ये होता है ये असल में। एक और मैं मिसाल आपको पेश करूंगा, इंशाल्लाह बात आपको समझ आ जाएगी और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको बात बखूबी समझ आ जाएगी। एक हमारी सिस्टर है नजमा रोजी, इंटरनेट के ऊपर जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए नजमा रोजी। यूसुफ एडवोकेट साहब उनके वालिद हैं और रबुआ के अंदर ये रहते थे, रहाइश थी, और पैदाइशी कादियानी, ये पूरा घराना इनका कादियानी था। हुआ ये कि यूसुफ एडवोकेट साहब को कुछ ऐसे, चूंकि वो वकील थे, एडवोकेट थे, उनके पास कुछ सबूत थे रबुए के कि ये लोग किस तरीके से डाके डालते हैं, ज़िनाकारियाँ करते हैं, शराब नोशियाँ करते हैं, जुल्म और सितम करते हैं, लोगों की ज़मीनें हड़प इन्होंने की हुई हैं और उन्होंने पूरी फाइल इख्तियार की हुई थी। उस फाइल को वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाना चाह रहे थे और रबुआ, पूरे रबुआ के ऊपर एक एक्शन करना चाह रहे थे। कादियानियों को जब पता चल गया कि यूसुफ एडवोकेट साहब ये फाइल लेके जाना चाह रहे हैं, इन्होंने रातों रात उस बंदे को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। कुछ निकाब पोश आए, उनके घर के अंदर दाखिल हुए और जनाब छुरियों के वार करके उनको मार दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, क्योंकि वो मुसलमान हो गए थे। ठीक है जी, शहीद हो गए। उसके बाद नजमा रोजी जो कि उनकी बेटी हैं, उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ अपने रिकॉर्ड करवाए, आवाज़ बुलंद की सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको 101 हवाला दे सकता हूँ, सबूत दे सकता हूँ, नेट के ऊपर सब मौजूद है। जितने भी एक्स कादियानी हैं, यानी जो कादियानियत को छोड़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए, उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, आप वो हमारे मंसूर भाई हैं, उनका इंटरव्यू मौजूद है, वो तो बाकायदा जासूसी के निज़ाम के ऊपर मुतय्यन थे, उन्होंने अपनी सब कुछ बताया है। हमारी एक चंदा सिस्टर हैं, वो आपको नज़र आएंगी, वो तो रोज़ाना टिकटॉक के ऊपर उनकी वीडियो कोई ना कोई आती है और वो इन कादियानियों के हकायक बताती हैं और जो जुल्म सितम आज तक कादियानी उनके ऊपर कर रहे हैं, उनकी फैमिली के ऊपर कर रहे हैं, वो रोज़ाना बयान करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कत्ल भी जो है ना, ये कादियानियों ने खुद करवाया है, खुद करवा के उसको डाल दिया मुसलमानों के ऊपर। अब उसके मफाद ये लेना चाह रहे हैं, इन्होंने असाइलम वगैरह कुछ वो, चूँकि आजकल ये जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका, इन सब ने हाथ खींच दिए। इन्होंने कहा जी हम तुम्हें असाइलम नहीं देंगे, तुम तो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो पाकिस्तान के अंदर, तुम हमें झूठ बोलते हो कि हमें वहाँ पे हमारी जानों को ख़तरा है, ये है वो है, तो लिहाजा तुम्हें कोई असाइलम हम नहीं देंगे। अब इनके चूंकि केसेस हो रहे हैं कमज़ोर हो रहे हैं, अब इनको कोई ऐसे एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए कि जिसके ज़रिए वो उन लोगों को बावर करवा सकेंगे, देखो ये देखो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये है मुकम्मल हकायक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ है।
मैं वल्लाह आपको सही बता रहा हूँ, 25 साल तकरीबन हो गया मुझे ये ख़त्म नबूवत का काम करते हुए। मेरे पूरे कैरियर के अंदर एक मुसलमान ने कभी किसी कादियानी के घर की मक्खी को मारा हो, उसका सबूत नहीं है। कादियानी को मारना, जान से मारना या उसके मुंह पे थप्पड़ मारना तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। उसके घर की मक्खी तक को किसी मुसलमान ने मारा हो, इसका कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें देख लें, पाकिस्तान की जेलें देख लें, रिकॉर्ड देख लें, आपको किसी रिकॉर्ड के अंदर कोई ऐसा मुसलमान मुलव्वस नहीं मिलेगा। समझ आई कि नहीं? तो बहरहाल ये लोग खुद सब कुछ करते हैं सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और जनाब असाइलम लेने के लिए, सियासी पनाह लेने के लिए। जब तक ये अच्छा, ये अपने बंदों को खुद मरवाते हैं, खुद तोड़ फोड़ करवाते हैं, खुद सब कुछ करवाते हैं। पास इन्होंने कैमरे वाले खड़े किए होते पहले से और क्योंकि प्लानिंग होती है ना, वो वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं और उसको अपलोड करते हैं हर जगह के ऊपर। वो हल्ला मचाएंगे और जनाब वो मर गए, डूब गए, रुड़ गए, ये पाकिस्तानी मुसलमान, ये हमें मार गए, टोक गए, वट गए, हमारे पर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। ये सब ड्रामेबाजी है, टोटली ड्रामेबाजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए तशरीफ़ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। तो आप हमारी वीडियो को देखा करें, कमेंट लाजमी किया करें, अच्छा या बुरा कमेंट वो आप लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार लाजमी करें। ठीक है जी, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ी तवज्जो से पढ़ता हूँ। और अच्छी बात को शेयर करना, आगे बढ़ाना, लोगों को बताना, ये एक सदका जारी है। सदका जारिया इसी को कहते हैं कि स्वाब, एक जारी रहने वाला स्वाब जो है ना, वो उसको मिल गया। भाई आपने ये वीडियो देखी, आपको कोई एक चीज़ पता चली, नई चीज़ पता चली, आप किसी और को भी ये पहुँचाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसको दिखाएंगे ये वीडियो, तो आपके लिए वो सदका जारिया हो जाएगा, स्वाब जारिया बन जाएगा ना। तो आप हमारी वीडियोस को शेयर किया करें लाजमी तौर पे, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें, फेसबुक के ऊपर शेयर करें, और जहां कहीं भी आप हैं इसको शेयर लाजमी किया करें। आप बल्कि अपने व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है ना, उसमें हमारी वीडियोस के लिंक जो है ना वो आप लगाया करें स्टेटस के अंदर, ताकि आपके स्टेटस को आपके और दोस्त बड़े देखते हैं, सुनते हैं, हाँ जी, तो वो फिर हमारी वीडियो को भी देख लेंगे। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। रब रखा।